Here I got a Buddha statue here, and these are the Buddhist people here. And मेरा नाम संतोष कुमार हुआ, बोध गया का रहने वाला हूँ। जी जिला गया, जी बिहार। जी ये मेरा वर्मी कंपोस्ट यूनिट 500 बेड का है, जी जिसका लंबाई 10 फीट, चौड़ाई 3 फीट और हाइट जो है सो 2.5 फीट का होता है। New calf of buffalo. He is very cute. This is the office of the owner here. They have photo with the ministers. So these are the beds here for the vermi compost. लोग अभी जो है नंदनी नर्सरी में आए हैं और यहाँ डेयरी फार्म भी है और इनके ओनर से हम आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे और कैसे वो यहाँ पे जो है नर्सरी चला रहे हैं और डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं और उसके साथ कंपोस्ट भी तैयार कर रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपोस्ट, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो आइए चलते हैं और नंदनी डेयरी एंड नर्सरी के ओनर से मिलते हैं। Good morning friends. Today's time is around 6:30 a.m. and we have stayed in Pradeep's uncle house, another uncle house, and now we are going to some unknown destination for visiting, and we will visit some more villages also. This is also part of village, but here some good houses are also there and some old houses also there. So it's a mix up of both the things, and here the farmers are very well established, so they are making good houses, and you can also see that there are some kettles in some houses like this. You can see very cute new baby. He is a new baby, he doesn't know anything right now. So he is very cute. So we are visiting another destination now. I don't know where we are going. They are taking me somewhere else. Our car is behind, and now we will go to the unknown destination, and I will let you know about all the things. I am just visiting different villages, meeting with different people here, and having a good experience in Bodh Gaya. New calf of buffalo. He is very cute and he don't understand anything. He don't understand who is human being, who is animal. He is very cute, very cute. Like look. So here in villages they have goats and they have cow, and there they have buffalo also, and they use this cow dung also for making the floor of their campus outside their house, so that it looks smooth. See, there is the goat, mother goat, and their child are drinking the milk, and it's early morning here, and it's a village, but little bit you can see develop also, and old houses are also there. And here is the farm field there. They have grown rice. Mostly they grow rice because they have good water here. And we are going now. We have stayed in that house, Pradeep's uncle house, and now we are going. Right now I am in Nandini Dairy. It's a dairy and a type of farmhouse. And here I got a Buddha statue here, and these are the Buddhist people here, and I'm visiting their farm. Very big property, in 25 acres they have made. That building also belongs to them, and it is on the highway, so very big property. So I'm just looking around it. Nursery here, all the plants here, and they have a dairy also at that side. We have the dairy, so we will go and visit that also. So right now I am in the dairy inside the farm, and these are the different breeds of cows they have, and they produce milk, and they also make paneer out of it, and they sell in the market. And it's a very old dairy. Its name is Nandini Dairy.
here, and these are some calves of the cow. You can see here the new generation. And now we are in the nursery. These are the indoor plants they have planted here for sale, and they get the water supply from here. एक बना लेता हूँ. And here they put all the pesticides, manure here which are required for the plants, and they give to the people who come here to purchase the plants. And they are starting the ceramic pot business also. Slowly they are starting. This is the office of the owner here. They have photo with the ministers and Harish Rawat sir and Nitish Kumar, CM of Bihar. This photo also with the CM of Bihar, Nitish Kumar, Radha Mohan Singh, and Krishi Mantri. he is the agriculture minister Radha Mohan Singh. And the last one, Om Prakash Singh Yadav. okay, he is Om Prakash Singh Yadav. He is also the central minister of agriculture and farmers development. This is the vermicompost, and they will mix Jiva Amrit in it, and they will pack like this, and it is a manufacturing unit. I will show you the manufacturing of the vermicompost also. Showing the beds of the vermicompost. They make the beds. ये कितने साइज का होता है? 10 बाई 3, अच्छा, 10 फीट लंबा, हाँ हाँ, 3 फीट चौड़ा okay. और 2.5 फीट हाइट. This is the beds of the vermicompost. It is 10 feet long and 3 feet wide, and the height is around 2 feet. So these are the beds they have made for the vermicompost, and they put the cow dung here, and then they put the earthworms. And कितना 30 दिन में बनता है? 90 days. In 90 days they get the vermicompost from here. Then they mix Jiva Amrit in that, and then they do the packaging like that. They have done the packaging also, and they do the transportation. They are transporting to another states. So these are the beds here for the vermicompost. This is the pond they have made just next to the vermicompost. The beds of the vermicompost here. He is the owner, and he is showing us how they prepare the vermicompost here, and lots of beds are here. थोड़ा सा बताएंगे ये कैसे प्रिपेयर करते हैं इसका? पहले आप अपना एक परिचय दे दो, और आपका कहाँ फार्म है ये बता दीजिए, और फिर ये कैसे बनाते वो बताइए. ये मेरा नाम संतोष कुमार हुआ, बोधगया का रहने वाला हूँ जी जिला गया, जी बिहार जी. ये मेरा वर्मी कंपोस्ट यूनिट 500 बेड का है, जी जिसका लंबाई 10 फीट, चौड़ाई 3 फीट और हाइट जो है सो 2.5 फीट का होता है. इसमें जितने भी फार्म वेस्ट, मतलब डेयरी फार्म का वेस्ट, पोल्ट्री फार्म का वेस्ट, जितना भी फार्म वेस्ट या एग्रीकल्चर से संबंधित जो भी वेस्ट होता है, पीट में डाल करके और गोबर से मिक्सिंग करके फिर हम इसको पीट में डालते हैं. पीट में डालने के बाद यहाँ पे उसको केचुआ फाइनल हो जाता है, तो ऊपर से केचुआ डाल दिया जाता है. अच्छा. और ये केचुआ देखिए, ये सारा यही केचुआ यहाँ डेवलप यहाँ होता है. और ये इसका जो लेट्रिन होता है, हाँ. इसी में जाइम हो जाता है. इसका जो पौधों के लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट जो चाहिए 17 तरह का, वो इसी के द्वारा ये करने के बाद ये डेवलप हो जाता है. और ये चाय के पत्ती के जैसा बारीक हो जाता है. हाँ, बारीक हो जाता है, एकदम सॉफ्ट हो जाता है जी. फिर इसको चलनी करके और पैकेजिंग किया जाता है जी. इसको टोटल जो है बनने का जो है 90 से 120 दिन में तैयार हो जाता है. और इसमें पानी भी हमको देना पड़ता है. बीच बीच में पानी, जैसे गर्मी के टाइम में है तो पर डे सुबह में पानी स्प्रिंकलिंग कर दिया जाता है. हाँ. और अदर डे जैसे अब ठंडा का मौसम है तो इसमें सप्ताह में 1 आध दिन देना पड़ता है. तो हम लोग जो केचुए इसमें मिलाते हैं वो
जब ये गोबर ठंडा हो जाता है, हाँ। इसकी गर्मी चली जाती है, उसके बाद ही हम वो केचुए इसमें वो करते हैं। डालेंगे ना तो एक तो गैस फॉर्म हो जाएगा, मीथेन हाँ। गैस निकलता है जी। और टेम्परेचर हाई रहता है, तो हाई टेम्परेचर में वो केचुआ मर जाएगा। इसलिए उसको पहले ठंडा हो जाता है, उसका तापमान जब निकल जाता है, हाँ। उसके बाद उसके ऊपर पीठ में डाला जाता है और तब उसके बाद ऊपर से कवर कर करके और पानी छिड़काव किया जाता है। तो ये ठंडा गोबर ठंडा होने में कितना समय लगता है? ये करीब 1 महीना के अंदर में ठंडा हो जाता है। हाँ, ठंडा फिर होता उसके बाद ही केचुए डालते हैं हम। हाँ हाँ हाँ। अच्छा। और ये टोटल कितने आपके पास ऐसे पिट्स बनाए हुए हैं आपने? 500 है। 500 है पिट्स है। अच्छा। जिससे हमको ये भारत सरकार का एक उपक्रम था, जैविक खेती प्रोत्साहन योजना जी। तो जैविक खेती प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत हाँ। ये हमको बिहार सरकार से जी। मिला था 50% अनुदान पर। ये 50 लाख का प्रोजेक्ट था। अच्छा। जिसमें 50% माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा हमें अच्छा 50% सब्सिडी उन्हीं के हाथों से चेक मिला हुआ था जी। तो ये हो गया। उसके बाद धीरे धीरे उस समय पूरे ब्लॉक में, हर एक जगह ब्लॉक में 2 ट्रक 1 ट्रक माल जाता था, लेकिन धीरे धीरे इसका योजना अब समाप्त हो गया है। अब चूंकि मतलब मार्केट मेरा बिहार सरकार था, तो वहाँ जब नहीं जाने लगा तो हम यहाँ नर्सरी डेवलप किए। अच्छा। अब नर्सरी डेवलप किए तो जो पेड़ पौधे खरीदते हैं, जो आम अमरूद नींबू केला ये सब खरीदते हैं, उन लोग ले जाते हैं। जितने भी पेड़ पौधे खरीदने वाले, हाँ। प्लांट इंडोर प्लांट आउटडोर सभी कोई वर्मी कंपोस्ट ले जाते हैं, जिससे हमको प्रतिदिन लगभग 10 से 20 क्विंटल मतलब ये वर्मी कंपोस्ट निकल जाता है। 10 से 20 क्विंटल डेली जाता है। और 500 जैसे आपने बेड्स बनाए, तो 500 बेड्स में आपका वर्मी कंपोस्ट कितना तैयार होता है? कैपेसिटी तो वैसे है सर जी 3000 मेट्रिक टन पर एनम। अच्छा। है ना, लेकिन अब हम देखते हैं मार्केट के अनुसार। अब तो पहले उतना कैपेसिटी में काम कर लेते थे, लेकिन हाँ। जब बिहार सरकार में मांग नहीं होने लगा, तो अब जितना मांग होता है उसी अनुसार प्रोडक्शन करते हैं। और अभी मेरा ठीक चल रहा है। अब जहाँ तहाँ बड़ा बड़ा संस्थान में, बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूशनल ये में, यहाँ बोधगया में मंदिर, मोनास्ट्री, रिसोर्ट ये सब में जाता है। अच्छा, एक मेरा एक और सवाल है। कोई किसान है जैसे, अगर पहले वो ऑर्गेनिक खेती नहीं करते थे, लेकिन अब ऑर्गेनिक करना चाहते हैं, तो उनको अपनी ज़मीन को पहले तैयार करना पड़ेगा। तो ये वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करके वो कैसे तैयार कर सकते हैं ज़मीन को, वो थोड़ा समझा दीजिए। हाँ, उसमें है ना कि जैसे वर्मी कंपोस्ट, चूँकि हमारा लोगो ही है अपन खेत अपन खाद, अपना मगही भाषा में उसने ये किया जी कि अपन खेत अपन खाद। किसान को वर्मी कंपोस्ट खरीदने की जरूरत नहीं है, वो तो खुद वर्मी कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं जी। और किसान हम तो यहाँ जो प्रशिक्षण चलता है आत्मा के सौजन्य से बिहार सरकार के द्वारा जी, तो यहाँ 2 महीना का 1.5 महीना का ट्रेनिंग चलता है किसी संस्थान में। अच्छा। तो उन लोग को बताया जाता है कैसे खेती किया जाएगा, कैसे वर्मी कंपोस्ट उत्पादन किया जाएगा। उसका मान लिया ज्यादा उत्पादन हो गया है तो आप यहाँ दे दो या अपना मार्केट देखो, ऐसे कर करके उन लोग को बताया जाता है। वो तैयारी पूरा जोर शोर से मैंने कैसे केवल ऑर्गेनिक किया जा सकता है। वैसे तो शुरू के दिनों में ज्यादा मतलब इसमें लागत लगता है, हाँ। लेकिन बाद में आभास होने लगता है कि ये इसमें है कि धीरे धीरे आप कम करते जाइए मात्रा को। और केमिकल फर्टिलाइजर में कि धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक दिन आपका भूमि जो है वो बर्बाद हो जाएगा। हाँ, उसमें मन क्षारीय हो जाएगा। हाँ, हाँ। और ये हम लोग का जो ये वाला है जो चलते रहेगा। और अभी शुरू में मान लिया जैविक खेती करना चाहता है तो उसको कट्ठा में हो सकता है 30 किलो 40 किलो देना पड़े, और फिर धीरे धीरे उसको कम करते जाएगा। जैसे 30 किलो हो गया तो उसके बाद 25 किलो, फिर 20 किलो, फिर 15 किलो। जमीन की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, क्योंकि उसकी उर्वरता बढ़ जाएगी अपने आप। वहाँ के जमीन में जो भी सूक्ष्म तत्व है, हाँ। जो पौधे के लिए चाहिए वो उसको उपलब्ध मिल जाएगा जी। अपने आप जमीन से पौधे ले लेंगे। अब बात रहा कि जो इसका जो भी नुकसान हो रहा है आजकल केमिकल फर्टिलाइजर से, तो उसका नुकसान
अभी तो सरकार के द्वारा ये हो रहा है ना कि इतना खाद्यान्न उत्पादन नहीं हो पाएगा केवल जैविक से, तो धीरे धीरे लोगों को जागृत किया जा रहा है। इस क्षेत्र में आ रहे हैं लोग। हाँ, इसका उत्पाद का मतलब मूल्य भी ज्यादा मिलता है, मूल्य भी ज्यादा मिलता है और पोषक तत्व भी रहते हैं, कोई केमिकल्स नहीं रहते हैं, तो हानिकारक नहीं है। हाँ, अभी देखिए कि जो आप पालक साग या कोई साग लाते हैं, हाँ, और टमाटर काट के सलाद बनाते हैं, फिर भी आपको केमिकल जैसा महक आता है। और उससे वो जो शरीर में जाता है, तो आप सुन ही रहे हैं, किसी का कैंसर है तो किसी का किडनी फेल है तो लीवर खराब हो गया है। तो ऐसे ऐसे करके जो समस्या आ रहा है, ये सारा प्रभाव है कि पेस्टिसाइड और केमिकल फर्टिलाइजर का। जो इसका निदान यही है, वर्मी कंपोस्ट, जैविक खेती। हाँ जी, ठीक है, थैंक यू। ओके।